So good afternoon, everyone. I again welcome you all in this class of DSA. This is our lecture number 57, and we are in the fourth unit. We are our topic that is going on is AVL tree. In last lecture, we have started AVL tree, that is a kind of a balanced binary tree. So, can you tell me that how we can calculate the balance factor of any node in a AVL tree? Height of left node minus height of right node Height of of left the sub Height of left subtree. 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 Height of left Minus. subtree minus height of right subtree Okay, equals my to balance presentation is vector. visible to you all. Yes, sir, it is visible. So we have seen that how we can calculate Balance vector. the balance factor of a particular node in order to find out whether the tree given to me is a AVL tree or not. Initially, we have seen why we required such kind of balancedness. Okay, because most of the operations of the tree depends upon the height of the tree. So overall, we are required to reduce the height of our tree. So binary search tree ka drawback we have seen, and that's why we have tried to start use a height balance tree, that is AVL tree, one of its kind. So balance factor can be calculated with the help of height of left subtree minus height of right subtree. The range should Zero, be one to 0 to Minus minus 1, 1. 0 and 1. minus 1, 0 and 1. So overall, any of the node could be in this range only. We can say the node Balance balance tree. factor should be in this range only. So it should be minus 1 actually. So I need to do it minus 1. So now we have also seen that why, like how we can make the tree balanced if some unbalancedness is being created. For that we are using rotations, different kinds of rotations that we can use for making the tree balance are left rotation, right rotation, and left right and right left rotations. First two rotations are single rotations because in this we are required to perform only one rotations, but the third and fourth rotations are called double rotations because we are requiring to perform two rotations, a combination of left and right both. Accordingly, okay, so we are saying single and single rotation and double rotations. First rotation we have seen that left rotation, it is also known as RR rotation. So how this is known as RR rotation? It is also interesting thing. Can anybody discuss with us why it is calling RR सब rotation? सब ट्री के लेफ्ट राइट पार्ट के वो सब ट्री के लेफ्ट वो राइट पार्ट में नोड को रोटेट करेंगे. No. Can anybody tell me why it is calling RR rotation? सर राइट सब ट्री के जो राइट सब ट्री का राइट एक और जो राइट सब ट्री है सर, उसमें जब हम एडिशनल नोड ऐड करेंगे उससे जो क्रिटिकल नोड प्रोड्यूस होगी सर. Very good. When the new node to be inserted is into the right subtree of critical node. Now in this figure, critical node is A because balance factor -2 है इसका, and because of insertion of the C, which is into the right subtree of A, that's why it is becoming critical node. So this rotation, that in that case we need to perform RR rotation. RR means left rotation. So मैंने आपको कल बताया था कि we will perform a rotation, left rotation below the node which is becoming critical node. So in this way we will perform left rotation. आप जब भी कॉपी में बनाएंगे तो आप इस तरीके से अपने रिमेम्बरेंस के लिए ऐसा कर सकते हैं. So critical node के नीचे से हम इसको रोटेट करने वाले हैं. The edge in between the critical node and its child will be rotated. So now A will become the left part of B and B will become the root. In this way it is performing RR rotation. So is it okay? ओके सर, ओके है. Everyone, it is Left okay. First anti-clockwise. rotation, RR rotation. Any doubt in this? So I request you all to be interactive. Okay. Until unless you are not giving me the answer or replying, then how should I come to know कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. Only one student can reply. तो उसके बेसिस पर मैं क्लास में 60 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना बेटा. So all needs to reply.
Is it okay? If you have any doubt, you just ask to me, because insertion and deletion all based on this rotations only. That's why before insertion and deletion, I have started this one. Next one is again single rotation, that is LL rotation. It is called LL rotation. Why? ट्री के Left लेफ्ट of पार्ट left के subtree लेफ्ट of पार्ट में critical उसको node. राइट रोटेट कर देंगे. जब भी हम हमारी नोड न्यू नोड because of which insertion a critical node is being created, if the position of that node is into the left subtree or of the left subtree of a critical node, then it is called, then we need to perform actually LL rotation. LL rotation is nothing but a right rotation. So again, in this diagram you can see 2 is becoming critical node, so we need to perform our right rotation in this case, LL rotation. Okay, so क्लॉकवाइज रोटेशन. अब हम यहाँ पर बोलेंगे 0 1 2, so B will become the root and C will become the right child of that particular node. Now coming on to the double rotation, that is left right rotation and right left rotation. So left right rotation is LR rotation. Okay, so LR, I have also added one line in that is LR equals to RR plus LL. इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो. इसको उल्टा लिखेंगे अब देखो ध्यान से, LR is equals to RR plus LL. So what does it means? Ki first I need to perform RR rotation and then I need to perform LL rotation. Now RR rotation is nothing but left rotation and LL rotation is nothing but right rotation. Right. है ना? So ये मैंने I have added this particular new thing for you all so that you will be able to remember easily, I think. So left rotation, LR, left right rotation, is a combination of two rotations. That's why it is also known as double rotation. So it is a combination of RR followed by LL. ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. Similarly RL is right left rotation, which is a combination of again two rotations, that is LL plus RR. Again it is reverse order. आप देख रहे हैं, if RL is there then it is LL plus RR. LL क्या है? राइट रोटेशन, एंड RR क्या है? लेफ्ट रोटेशन. सो ये जस्ट रिवर्स में इसको याद कर सकते हैं और इसी तरीके से रोटेशन परफॉर्म करना होगा. सर हम इनको ये जैसे लेफ्ट वो राइट लेफ्ट रोटेशन में सर हम जो आपने एक्सप्रेशन दी है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे LL को फर्स्ट एग्जीक्यूट करें और RR को बाद में. नहीं कर सकते बेटा, तभी तो मैंने लिखा है जानबूझ के यहाँ पर. ओके, नाउ लेफ्ट राइट फर्स्ट वाला जो फर्स्ट रोटेशन है इसमें वो तो सर लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है ना सर, और इसमें RR पहले लिख रखा है सर. तो RR क्या होता है बेटा? मैंने पहले बताया ना. ओके सर, ओके, यस लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, है ना, उल्टा होता है. RR इज लेफ्ट रोटेशन एंड LL इज राइट रोटेशन. थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा तो आप भूलोगे नहीं इस चीज को. So please try to remember the things that I am trying to highlighting. Okay, like यहाँ पर हमने बोला लेफ्ट रोटेशन है तो RR होगा और राइट रोटेशन है तो LL होगा, उल्टा होगा. ठीक है. Now when we will perform LR rotation, it is clear to all. When the new node that is to be inserted is in the right subtree of the left subtree of critical node. ठीक है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं इसलिए. आवाज आ रही है कहीं से? अजय माइक बंद कर ले. So LR rotation is when we will perform LR rotation. इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर नंबर 1 को in this slide. The new node because of which the B is the new node जिसके insertion पर C critical node बन रहा है. Now the position of B is it is in the right subtree of the left subtree of C. लेफ्ट वो राइट सबट्री, राइट क्योंकि हम इंग्लिश में उल्टा बोलते हैं बेटा, है ना. तो राइट सबट्री ऑफ लेफ्ट सबट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड ए. इज इट ओके? सो दैट देन वी विल परफॉर्म LR रोटेशन. यहाँ कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट. LR rotation, when we will perform LR rotation, we will perform LR rotation when the new node that is to be inserted is in the right subtree of the left subtree of the critical node. Like in this case, B is in the right subtree of the left subtree A of the critical node C. Then we will perform LR rotation. हिंदी में इसको बोलोगे तो बिल्कुल सही बोला जाएगा, LR ही बोला जाएगा. लेफ्ट सबट्री के राइट सबट्री में आपको नोड इंसर्ट करनी है, तब क्रिटिकल नोड बनेगी वो.
लेफ्ट सब ट्री के राइट सब इंग्लिश ट्री में में। बोलेंगे तो थोड़ा हमको उल्टा बोलना पड़ता है ना इंग्लिश में। राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड। इज इट ओके नाउ? सो अब देखो करना क्या है, एल आर इज इक्वल टू आर आर प्लस एल एल, ये मैंने बताया अभी आपको। सो जस्ट लाइक लुक एट दैट, इसमें क्या हम एल एल या आर आर परफॉर्म कर सकते हैं? तो क्या ये सही हो जाएगा? पहले हम ये चेक करते हैं कि क्यों हम दो रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सिंगल रोटेशन से ये सॉल्व नहीं होगा? लुक एट दैट, सी ए बी, C is the critical node now. Now suppose I am performing LL rotation, it means right rotation. तो right rotation पे क्या होगा? कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा। तो रूट नोड क्या बनेगा? A बनेगा, है ना? और C कहाँ जाएगा? राइट पार्ट में चला जाएगा। राइट में जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये रोटेट होके राइट में जाएगा C। नाउ B कहाँ जाएगा? वो भी सर अनडिफाइंड पोजीशन है। हाँ, तो LL रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या हम लोग? अब जस्ट टेल मी। नो सर। नहीं, तो सिंगल रोटेशन, सिंगल राइट रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर because it is not following the tree that we will get it is not following the properties of binary search tree. Now try to perform right RR rotation. RR rotation is left rotation, तो लेफ्ट मतलब कि मुझे इसको लेफ्ट में रोटेट करना है। सो अब ट्राई करें लेफ्ट में कैसे रोटेट होगा, ये बताइए। रूट नोड क्या बनेगा? C will be A. A will be the root node. A will be root node, C C will be will left be the left subtree, child, and B will be and right. B will be the right child. तो क्या अब ये बाइनरी सर्च ट्री है? No sir. No. So again we cannot perform this rotation. Sir, why this is not binary search tree? Means it is stable. Stable what? Balanced. This is balanced, but is it following the binary search tree properties? नहीं तो Sir, according to that condition, the left one is smaller and the right one is bigger in that case. ऐसा हो रहा है क्या? Sir, we are including as the order of A, B, C, means C comes after B, then it is bigger than B. In Definitely, तो that way अभी we are looking. C is not on its appropriate position, na? Yes, sir. Yes, sir. So it is It not is a showing output. that it comes before A, but it comes Very after good. B. Okay. So we are also बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी को ये हम डिस्कार्ड RR कर भी रहा परफॉर्म है। नहीं कर सकते, ठीक है? So now what we will do, we will perform the combination of both. अब हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ओके? सो पहले हमने क्या किया बच्चे, इसको हमने, अब हम जो रोटेशन करेंगे अब हम क्रिटिकल नोड के ऊपर नहीं करेंगे। अब पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको, जब भी डबल रोटेशन होगा इट विल नॉट बी ऑन टू द क्रिटिकल नोड लाइक इनटू द सिंगल रोटेशन। मैंने आपको बताया कि आप क्रिटिकल नोड पर रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन डबल रोटेशन में क्रिटिकल नोड पे रोटेशन, पहला रोटेशन क्रिटिकल नोड पे नहीं होगा। फर्स्ट रोटेशन जो होगा वो क्रिटिकल नोड के चाइल्ड पर होगा, ओके? जो भी नोड उसके चाइल्ड है जिसके कारण से हम क्रिटिकल, जो पाथ बन रहा है पूरा, उस पाथ में आप सर्च करेंगे, उसका जो चाइल्ड नोड है उसका और न्यू नोड के बीच में रोटेशन होगा, ओके? सो पहला रोटेशन है RR रोटेशन। RR का मतलब लेफ्ट रोटेशन, हम इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे A एंड B को, जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। सो क्या होगा, A इज बिकमिंग द चाइल्ड ऑफ, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ B, एंड दिस थर्ड डायग्राम वी विल गेट। यस और नो? यस सर। ये क्लियर हुआ आपको? Yes, पहली sir. चीज फर्स्ट, इट इज अ फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, ओके? तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर RR परफॉर्म किया। RR परफॉर्म करके हमें कुछ इस तरह का ट्री बना और अल्टीमेटली हमें यहाँ ये मिला, बिकॉज, ओके? सो अब क्या वापस से अभी बैलेंस हुआ क्या? ये नहीं, बैलेंस नहीं हुआ, स्टिल इट इज नॉट अ बैलेंस ट्री। सो अगेन आई नीड टू परफॉर्म LL रोटेशन। LL rotation is nothing but right rotation. Now I need to perform, this is second rotation, so मुझे अब critical node पर rotation perform करना होगा in right direction, LL rotation. So अब क्या होगा, ये मेरा LL rotation होगा, okay? So LL rotation में हम right rotate करेंगे और B will become the root node. Root node. And C will become, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं already. Yes or no? यस सर। सर रुको सर थोड़ा। So अब this is overall, I can say this is overall LR rotation, and which is a combination of RR plus LL. RR followed by LL. So in the second rotation, we are just swapping B and A, but how we are knowing that there is an empty space in the left of A,
और इन सेकंड डायग्राम आप बोल रहे हैं? yes sir, means we are indirectly we are swapping B and A, but नो 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 how नो we can नो नो, आप इस तरीके से देखो ही मत कि हम स्वैप कर रहे हैं, हम तो रोटेट कर रहे हैं बेटा ट्री को। सो जब रोटेट करेंगे yes तो sir, इफ okay okay, तो फिर वो उस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। स्ट्रक्चर में yes रोटेशन, आप sir, रोटेशन okay वर्ड यूज करो, स्वैपिंग तो लाओ ही मत ना। मैंने आई हैव नॉट यूज्ड एनी टाइम लाइक स्वैपिंग एनी मोर नाउ इन दिस ईविल ट्री। मैंने स्वैपिंग कभी यूज ही नहीं करी अभी तक। I know that swapping is it is looking like a swapping, but आप swapping से compare मत करो। It's a rotation, so you just rotate it. अभी clear sir, है can बच्चों? we rotate it in another direction also? Sorry? Sir, can we rotate it in another direction also, as we have done the How you from can B to rotate A? it? बताओ So can we बताओ। rotate in? अच्छा ठीक है, आप कोशिश करो। LL Sir, we रोटेशन have परफॉर्म, आप इसको लेफ्ट में रोटेट करने की, राइट में रोटेट करने की कोशिश करो बच्चे, करो। क्या होगा, ए एंड बी को, केवल इस डायग्राम को देखिएगा, सेकंड डायग्राम को, है ना बच्चे, सी ए बी। सो अब इसमें आप लेफ्ट की जगह राइट रोटेशन परफॉर्म करो, क्या होगा? क्या ये राइट रोटेट होगा? पहली बात तो, क्योंकि ये no अनबैलेंस्ड, sir, जिस A बीच में लिंक है सर। yes sir, बेटा जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मतलब हमारा वेट ज्यादा है, क्या हम उसी डायरेक्शन में और करेंगे तो वेट उसी डायरेक्शन में ज्यादा होगा? इसको इस तरीके से समझो आप एक बार। सर ए बी सी की जगह सर कुछ न्यूमेरिक नंबर लो, जैसे 10 हाँ 20 लेंगे, 30। न्यूमेरिकल मैं अभी लूंगा, जब हम अपन एग्जांपल करेंगे तो न्यूमेरिकल भी आएगा बेटा, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल में डाला है, पूरा जो न्यूमेरिकल मैंने बनाया है उसमें न्यूमेरिकल नंबर भी है, वो न्यूमेरिकल नंबर पर बेस करेंगे। इज इट ओके नाउ? LR रोटेशन इज क्लियर? व्हेन वी विल परफॉर्म LR रोटेशन, सबसे मेन चीज ये कि आपको कब क्या परफॉर्म करना है, ये याद रखना है। लोगों सर थोड़ा समझ में ले दो ये कैसे। Anyone else has any query? No one has any query. I am taking this in this way, okay? So next one is right left rotation, okay? So right left rotation is just reverse of the left right rotation. It is RL. अब हम कब परफॉर्म करेंगे? अगेन हमें इसको देखना पड़ेगा, जब भी नई नोड राइट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में एंटर हो, दैट इज RL रोटेशन। क्रिटिकल नोड के राइट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में जब नई नोड एंटर हो रही है, देन आई नीड टू परफॉर्म RL रोटेशन। नाउ इन इंग्लिश हाउ कैन वी से इट? if the node is inserted into the left subtree of the right subtree of the critical node A। देखो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यही है बच्चे की, इंग्लिश में हम कभी उल्टा लिख रहे हैं ना इसका, तो ये RL को LR कर देते हैं और LR को RL कर देते हैं, ये दोनों आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, सो बी केयरफुल फॉर दैट ऑल्सो। RL is nothing but LL plus RR. So LL it is right rotation and RR it is left rotation. Now look at that example ACB. So B की पोजीशन क्या है? Just tell me B कहां पर है इस वक्त in with respect to the node A? B जो है वो A के राइट सबट्री के लेफ्ट सबट्री में है, लेफ्ट पार्ट में। A के राइट सबट्री के लेफ्ट सबट्री में है वो। सो हम क्या बोलेंगे इसको? RL रोटेशन करना है, हिंदी में पढ़ो आप इसको हमेशा। A के राइट सबट्री के लेफ्ट सबट्री में है तो हम RL रोटेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो नाउ B is the node which is to be inserted। अब हम इसको RL का मतलब हुआ LL plus RR, तो पहले मुझे LL करना है, LL मींस राइट रोटेट। तो अब हम पहले B एंड C इस नोड पर, मैंने आपको बताया कि जब भी डबल रोटेशन में हम डायरेक्टली कभी भी क्रिटिकल नोड पर रोटेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोटेट इन बिटवीन द चाइल्ड एंड द न्यू नोड। So B and C will be rotated in LL way. So LL means right way. So B will become the root node and C will become the child of right child of this. So this is how the LL rotation will be performed in between C and B subtree. Now it is an unbalanced condition. So I will perform RR rotation. RR rotation now. लेफ्ट की तरफ। So it is RR rotation. So critical node पे rotation perform करेंगे और RR rotation हम apply करेंगे। RR means left rotation हम perform करेंगे। So I will get this one BAC, in which all the nodes are having the balance vector 0. It is -2, it is -1 actually. Okay, it is 1 and it is -2. So this is how we will perform the various 4 rotations. Now if you have any question on this, you can ask.
सर रुको सर, इनको अरे सर चेंजेस, हाँ चेंजेस को बने रहने। Is it okay now? So mainly 4 rotations are there. Left rotation, that is RR. Right rotation, this is LL. Left right rotation, this is LR. And right left rotation, it is RL rotation. So overall मेरे पास 2 ही रोटेशन है, हम उसके लिए उसके संग अलग अलग रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस के थ्रू, बट मेरे पास 2 ही रोटेशन, बेसिक रोटेशंस 2 ही हैं, वन इज लेफ्ट रोटेशन एंड वन इज राइट रोटेशन। राइट रोटेशन ठीक है, एक चीज एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक 2 स्लाइड्स और डाली हैं कहीं से नेट से निकाल के आपको समझाने के हिसाब से, यदि आपको अभी भी डाउट है तो। फर्स्ट इज लेफ्ट लेफ्ट केस। ओके, ये ट्री थोड़ा बड़ा का हो गया है इसमें, ताकि आप लोगों को सिंपल ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट मिले यहाँ पर। सो T1 T2 T3 ये सब ट्रीज हैं हमारे पास। ओके, नाउ आप जस्ट ऑब्जर्व करो, फर्स्ट डायग्राम को देखो और आप क्या परफॉर्म करोगे ये आइडेंटिफाई करो। T1 का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है? 0 T2 0 X 0 0 0 0 Y 0 0 Y 1 0 Y 1 1 1 2 minus 1 it is 1 क्यों? T4 0 0 and Z 2 1 2 3 minus 3 1 minus 1 it is 2. So now critical node is Z Z Z critical node is Z, and the node on which I have not written anything, they are having a balance factor 0. It is okay. तो नाउ टेल मी जस्ट क्या रोटेशन परफॉर्म होगा। आप आगे वाला आंसर मत देखना बच्चे, केवल ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या रोटेशन परफॉर्म होगा। अभी आपका किस डायरेक्शन में ट्री हैवी हो रहा है, हाइट किस डायरेक्शन में ज्यादा है? लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में ज्यादा। आपको कहां घुमाना चाहिए ट्री को? आप अब लॉजिकली सोचो। राइट पार्ट में आधा आधा कर दो, इस करेंगे ना तो राइट के अंदर घुमाएंगे ना। अब रोटेशन कहां होगा बच्चे? हमारे पास जो क्रिटिकल नोड है उसके जस्ट नीचे राइट रोटेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा वैसे भी देखो, हाँ देखो, अच्छा रिपीट, हाँ लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो, जो नया जो भी हमारे पास लाइक सपोज ये आपको ट्री दिख रहा है, इसमें हैवी सब ट्री कौन सा है, लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री? जो क्रिटिकल नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री हैवी है या राइट सब ट्री हैवी है हाइट के अकॉर्डिंग? लेफ्ट। अरे सर इसको एक जनरल एग्जांपल तो आप किस नहीं, अभी आप 2 मिनट मुझे बोलना था बेटा। जब हम इस ट्री को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो इन विच डायरेक्शन वी नीड टू रोटेट इट? आप जनरली सोचें, जनरल लाइफ में सोचें, ये आपके पास कोई भी राइट एक जस्ट लाइक सर राइट की तरफ खींचेंगे सर। वेइंग मशीन क्या जो वेइंग पोर्शन होता है ना सर, तुला जिसको बोलते हैं, बिल्कुल हाँ, उसके बेसिस पे देखें तो बैलेंस मीटर भी होता है ना, उसको भी आप ऑब्जर्व करें। यदि आपके पास आप जो भी आप मान लीजिए कुछ चीज भी लेने गए हैं कहीं पर भी, शॉप पर भी, तो यदि किसी एक साइड लेफ्ट साइड में वेट ज्यादा हो रहा है तो आप किस साइड में वेट करोगे ताकि वो बैलेंस बराबर हो? राइट साइड में। सो सेम इस तरीके से आप ऑब्जर्व करो इस चीज को। यदि लेफ्ट सब ट्री इज बिकमिंग हैवी देन आई नीड टू रोटेट इनटू द राइट डायरेक्शन। सो अब आप राइट डायरेक्शन को रोटेट कैसे करना है वो लॉजिक आप लगाओगे। ओके, एंड दैट लॉजिक इज कहां पर रोटेशन करना है ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, जो हमने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्रिटिकल नोड कौन सी है? Z Z के नीचे में राइट रोटेशन परफॉर्म कर दूंगा। सो Y will become the root node, Z will become the right of Y, and T4 become the right of that. And now find out the value of position of T3 की बताइए क्या पोजीशन हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्चुअली, आप सोचो जरा इस बात को। देखो y को हमने जब रूट बनाया तो y के राइट में कौन आएगा बताइए? सबसे पहले देखिए कौन आएगा? Z T3 Z होगा, Z होगा। y के राइट में कौन होगा? जब ये पोर्शन रोटेट हुआ तो y के राइट चाइल्ड कौन बना? Z बन गया, Z बन गया। Z का राइट चाइल्ड कौन बनेगा? T3 T4 लेफ्ट चाइल्ड T3 बनेगा। मैं राइट पूछ रहा हूं बच्चे। T4 सो ये क्लियरली T4 क्योंकि ऑलरेडी T4 Z का राइट चाइल्ड है।
नाउ बिकॉज y इज बिकमिंग द रूट नोड, y का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? x। अभी आप इस डायग्राम को मत देखना, राइट डायग्राम को जो एक्चुअली आउटपुट है इसका। ओके सर I x just- तो ऑलरेडी Left इसका child है, लेफ्ट X। चाइल्ड है y का। वेरी गुड, तो लेफ्ट चाइल्ड ही रहेगा ना x। यस सर, Yes, मतलब लेफ्ट ही X रहेगा। रहेगा। अब y का Yes, लेफ्ट sir. चाइल्ड तो x हो गया और राइट चाइल्ड z हो गया, तो t3 कहाँ जाएगा? z के लेफ्ट पार्ट में। z के लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, फिर तो वो एक ही जगह हाँ खाली है। बिल्कुल, एक ही जगह खाली नहीं है, लॉजिक है इसके पीछे, बिल्कुल लॉजिक है। y से तो बाइनरी बड़ा है, में। तो y के राइट सब ट्री में होना चाहिए, राइट सब ट्री में होना चाहिए। लेफ्ट सब ट्री में, क्योंकि t3 छोटा है अरे ना यार, t4 से। राइट में। पहले आप सुनो फिर बोलो। Z is greater than Y, so it will go to the right of Y. Very good. Okay, now what about T3? T3 is greater than Y or not? T3 ग्रेटर देन है। is greater than Y greater and than. lower than So T4. अब ये कहाँ होना चाहिए, राइट सब ट्री में या लेफ्ट सब ट्री में? राइट। राइट सब Y ट्री के में। Y के बेस Y पे के बोल रहा हूँ right मैं, राइट सब subtree ट्री में। में। यस सर, y के राइट में। अब मुझे बताइए T3 की वैल्यू Z से छोटी है बड़ी है? छोटी छोटी है। सो अब Z के वो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए? लेफ्ट में। सो अब ये Yes, आउटपुट ट्री sir. बनेगा आपका। अब आप Okay, आउटपुट sir. ही देखिए। अभी समझ में आया आपको क्या हुआ ये? यस सर। तो ये पूरा लॉजिक है बेटा, ये ऐसे ही नहीं है कि हमने कहीं पर भी रखा है इसको। सर आप Okay, इंटीजर वैल्यू लोगे ना तो थोड़ा और इजीली हो जाएगा। अभी जैसे आपने t1 t2 लिया ना, तो उसमें थोड़ा सर कंफ्यूज ऐसा सर इमेजिन करने ठीक में है। थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देख ठीक देख है, प्रूफ ओके, तो लीव करो। इट, मैं छोड़ देता हूँ इसको। मैं एग्जांपल पे आता हूँ, अपन ट्री बनाते हैं बैठ के, ठीक है? चलो छोड़ दो इसको। तो इंसर्शन इन एन इविल ट्री आई एम स्टार्टिंग। सो इंसर्शन ऑफ अ नोड इन एन इविल ट्री इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू। ओके, इंसर्शन हमेशा बाइनरी सर्च ट्री के जैसे ही होगा। इट मींस फर्स्ट नोड विल, द सीक्वेंस दैट यू हैव बीन गिवन विल बी द फर्स्ट नोड ऑफ दैट सीक्वेंस विल बी द रूट नोड, and greater number will be onto the right, lesser number will be onto the left. ये रूल फॉलो करने वाले हैं हम लोग इविल ट्री क्रिएट करते वक्त। बट नाउ insertion may be disturbed the balance factor of an evil tree, and therefore the tree needs to be rebalanced in order to maintain the balancedness of the tree. Evil tree में हम क्या करेंगे? At every node we will find out the balance factor. At every insertion we will find out the balance factor. Last point ये लिखा भी है मैंने, at every insertion we will calculate the balance factor of each node. Okay, whenever the new node will be inserted, it will be at the leaf node. Okay, now as soon as the balance factor of any of the node becomes out of range, it means the tree is unbalanced, and then we need to perform some rotation accordingly in order to maintain the balancedness. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। मेरे पास एग्जांपल पहले ये वाला ये भी था एक, जिसमें जो कि अल्फाबेटिकल एग्जांपल है, बट लेट मी टेक दिस एग्जांपल 25, 45, 50, 55, 60, 65 and 75. Okay, let us start. First root node is 25. 25. So 25 is the root node. Okay, so now second one is 45. 45. लेफ्ट Right child. लेफ्ट पार्ट में। कहाँ जाएगा ये? राइट 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 में। राइट चाइल्ड। 25 के राइट राइट में में। 45 जाएगा। बैलेंस फैक्टर निकालिए। 45 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 0 0 0. ओके, और 25 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 1 Minus 1. -1 बी केयरफुल फॉर दैट। ओके, जब भी बैलेंस फैक्टर निकलेगा तो बहुत ध्यान से निकालिएगा आप लोग। नेक्स्ट नोड इज 50 50 कहाँ जाएगा? Right of 45. 45. ये ट्री बन रहा है। देखो मैं ट्री कैसे बना रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 45 के राइट पार्ट में। मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन योर एग्जाम आल्सो, इन योर आरटीओ एज वेल एज इन योर मिड टर्म। आप एक ही स्टेप पर मैंने काम नहीं किया। लाइक आई कैन डू ऑन दैट स्टेप ओनली। 25 के साथ में ऐड कर देता यहाँ पर फर्स्ट ही में 45, देन 50 ऐड कर देता। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। सो सेम यू हैव टू डू इन योर एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आल्सो? वेदर इट यस इज सर। ओके, so first node Okay, insertion sir. 25, then second node नया ट्री बनेगा 25, 45, then 40, 50 नया नोड बनेगा। अब कैलकुलेट करिए बैलेंस फैक्टर। 0 -2 -1 and 0, Five minus का 1 and zero. minus 2. -2 -1
अब हमारे पास ये -2 ट्री अनबैलेंस हो गया। क्या ये एवियल ट्री है? यस No. सर। नहीं, नहीं है। इसका No, बैलेंस no, फैक्टर it's वैल्यू unbalanced, चुरासी it's है। unbalanced. T1 is an evil tree, T2 Yes, sir. is an evil Yes, tree, sir. but Yes, Yes, sir. T3 is not an evil tree. So I need to perform some rotation in that. Now tell me which rotation we will perform. सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये किस नई नोड जो एंटर हुई है वो कौन सी नोड है? 50। Right of right subtree. 50। हाँ, उसकी पोजीशन क्या है? क्रिटिकल नोड के रिस्पेक्ट में इसकी Right of पोजीशन है right राइट ऑफ Right राइट। of राइट right. ऑफ तो राइट, कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा? LL, लेफ्ट LL. रोटेशन, LL. लेफ्ट रोटेशन। Left ओहो। rotation. सर RR रोटेशन आर रोटेशन परफॉर्म होगा। क्योंकि लेफ्ट है ना, तो सर उल्टा रोटेट तो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको, कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा? इट इज आर रोटेशन, Left बट rotation. रोटेशन विल बी लेफ्ट। RR, but rotation will be बट हाँ लेफ्ट रोटेशन है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, गलती यही होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3-4 Okay, बार sir. एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये बैठे बैठे ये पढ़ने से सुनने से क्लियर नहीं होगा। ओके, ये क्योंकि सिंगल रोटेशन है तो हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं इसको? क्रिटिकल नोड पे परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिटिकल नोड पर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ सिंगल रोटेशन। सो नाउ 45 विल बिकम द रूट नोड। यस और नो? यस, लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा 25। 45 कहाँ आएगा? मिडिल में रूट बन जाएगा रूट। लेफ्ट में क्या आएगा? 25. 25. और राइट में क्या आएगा? 50। 50. 50। अब ये So- एवन ट्री है। यस यस। Sir, we need to perform each and every step in exam also. यस, मैं अभी जब पीपीटी में कर रहा हूँ बेटा, सो आपको कॉपी में तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता तो पीपीटी में डायरेक्टली एक ही स्टेप में सारा काम कर देता अभी यहाँ पर ट्री बना कर डायरेक्टली, बट डेलिबरेटली आई एम डूइंग दिस सो दैट यू पीपल आल्सो फॉलो द सेम थिंग। आपको ध्यान रहे कि हमने क्लास में पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, क्योंकि आई ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन कॉपीज की स्टूडेंट्स एक ही स्टेप में सारा काम कर देते हैं, तो मैं उनको कभी भी पूरे मार्क्स देता ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है बेटा? मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने कब क्या परफॉर्म Yes, किया यदि sir. आप एक ही ट्री बना देंगे तो? सो यू नीड टू डू अकॉर्डिंगली, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको वहां पर भी करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू डू। ओके, नाउ कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। इट इज 0 नाउ, इज इट ओके? यस, 0। सो नाउ Able इंसर्ट, tree है। नाउ इट इज एन एवियल ट्री, यस और नो? यस, एवन Yes, ट्री sir. है। Balanced AVL tree है। Very good. This is a balanced AVL tree. Now we will insert the next node, that is 55. 55 will be inserted where? Right of 50. Right of 50. राइट ऑफ 50। Right of 50. So क्या ये 55 इंसर्ट होने पर बैलेंस है, AVL है? नो। वेरी गुड। बहुत जल्दबाजी करते हैं लोग, बहुत जल्दबाजी करते बैलेंस हैं। बोलना है बस, परफेक्ट Balanced है -1। -1. हाँ, क्योंकि मुझे बोलना है इसलिए मुझे बस बोलना है, कुछ भी बोलना है। नहीं सर, मैंने देखा नहीं, वो तो कैलकुलेट देख के नहीं बोलो ना किया। बेटा। 3 दिन मैं 2 घंटे से ये पढ़ाया है, अभी भी यदि कोई गलत आंसर देगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 55 इज 0। 50 का क्रिटिकल 50 की बैलेंस फैक्टर क्या है? -1. -1 और 45 का बैलेंस वेक्टर क्या है? -1. -1. 25 का बैलेंस वेक्टर क्या है? 0. 0। 0. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस वेक्टर। अपनी दिमाग से मत लगाओ कि मेरे को आ गया, मेरा बन गया बैलेंस। नाउ व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू। ओके, एंड दैट नेक्स्ट वैल्यू इज 60। 60 कहाँ इंसर्ट होगा? 55 के लेफ्ट 45 पार्ट में। मैंने जानबूझ के ट्रीज पहले भी नहीं बनाए ताकि मैं आपके सामने यहाँ बना के बता सकूं, खाली छोड़े हुए थे स्लाइड्स मैंने। 45 55 के लेफ्ट 25 पार्ट में। 50 55। अब इसके लेफ्ट पार्ट में 60 ऐड होगा लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना? 60। ना। नाउ कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड, बताओ फटाफट बोलो। 60 का 0. 0 55 का -1. -1 50 का -2. -2. and -2 -2. 25 0. 0। now you see that how many nodes that have a balance factor out of range? 2. 2। This is a specific example in which you can say that more than one node also becomes the critical node,
But which node is a critical node for me right now? 50. 50. Which comes 50. first? Which Yes, becomes मैंने the बताया first था critical आपको, node? you need to start from the new node and towards the root node or critical node. Which one is the first node which is having a balance vector out of range will be the critical node for me. 50. यदि 2 3 4 5 कितनी भी नोड्स के बैलेंस वेक्टर यदि आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट नोड जो है वो मेरी क्रिटिकल नोड होगी हमेशा. सो क्रिटिकल नोड इज 50 राइट नाउ. ओके, नाउ व्हिच टाइप ऑफ द रोटेशन आई विल परफॉर्म? RR rotation. RR Again RR rotation. rotation. Okay, because it is into the right subtree of the right subtree. 60 की हम बात करें तो अब हम लेफ्ट पार्ट में रोटेट करेंगे. सो अब क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, ट्री क्या बनेगा? 50 वो बन जाएगा 45 के लेफ्ट में 25, राइट चाइल्ड इज 55. 55 के राइट लेफ्ट में 50 राइट में 60 And then 60. एंड राइट में 60. 60. Is this a critical node? Is this a balanced tree, ABL tree? अभी भी नहीं है. बैलेंस वेक्टर 0, 50 का बैलेंस वेक्टर 0, 55 का बैलेंस वेक्टर 0, 25 का बैलेंस वेक्टर 0, 45 का बैलेंस वेक्टर -1. -1. So now is it a balanced tree? yes. Yes sir. So next node insert करेंगे हम लोग. देखो, every time 65. I have inserted a new node, I need to calculate the balance vector. Every time I have rotated a tree, I need to calculate the balance vector. तो every step पर balance vector check होना है. तो आप यदि एक ही स्टेप में सारा ट्री बनाएंगे तो बैलेंस वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सब गचर पचर हो जाएगा. सो द रीजन इज ऑल्सो दैट कि आपको हर स्टेप को नया बनाना है ताकि नया बैलेंस वेक्टर दिखा जाए. राइट नाउ देखो, इससे प्रीवियस स्टेप में 45 है, बैलेंस वेक्टर -2, तो अब नाउ द बैलेंस वेक्टर इज -1. ओके, नाउ 65 कहाँ इंसर्ट होगा? Right of 60. Right of 60. सो 45 25 55. 55 लेफ्ट में 50, राइट में 60 और 60 और राइट में 65. क्रिटिकल नोड इन दिस केस विल बी 45. 45. very good. So balance vector will be now, again I am calculating the balance vectors. फटाफट बोलते जाइए. -1 65 0. Very good. 60 is -1. 50 is 0. 55 is -1. 25 is 0 and 45 is -2. -2. So critical node for me is 45 right now. 45. Here I am going to perform RR rotation. Where? कहाँ परफॉर्म करेंगे RR rotation? Tell me. Where I have to perform RR rotation? 55. 55 के नीचे या ऊपर? ऊपर. मतलब एज जो है वो बिटवीन 45 टू 55, यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे RR rotation. Is it okay? Yes, sir. Okay. So root node will be now 55. the root node will be 55. 55 का left child. 45. 45. Very good. Right child. जल्दी 50. बताओ. 50. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से बताइएगा. 60. 60 होगा. बहुत ध्यान से है ना. देखो 55 को हम ऊपर लेके गए, 55 बिकम द रूट नोड. लेफ्ट चाइल्ड डेफिनेटली विल बी 45 बिकॉज हमने रोटेट किया तो लेफ्ट बनेगा उसका वो. 60 is the right child of 55 because already it is a right child of 55. Now left child of 45 will be 25. 25. because it is already a left child of 45. Now what about 50? Right child of right of 45. 45 Right of 45. 45. 45. कैसे? अब पहले हम इसको देखेंगे कैसे. 55 के लेफ्ट पर. Because it is in the left of 55, तो 55 के लेफ्ट सब ट्री में जाएगा. ये पहली बात तो समझ में आ गई. लेकिन 55 का लेफ्ट तो ऑलरेडी 45 है. सो अब हम ये देखेंगे कि अब ये नेक्स्ट कहाँ जाएगा. 45 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा ये? राइट पार्ट राइट में. पे. और इस ट्री में भी देखिए, इससे जस्ट पहले वाले ट्री में भी देखिए कि 50 इज इनटू द राइट सब ट्री ऑफ 45. यस और नो? यस सर. सो यदि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो.
it is in the left of 55 and right of 45. So you need to start from the root node. From for 55 it will be onto the left and from 45 it will be onto the right. So इसकी पोजीशन यहाँ आई. अब समझ में आ गया दोनों चीजें आपको जो मैं यहां पर बताना चाह रहा था बेटा पहले. अब ये क्लियर है आपको. ऑन द बेस ऑफ पोजीशन मैं बताना चाह रहा था बिकॉज T3 into the T3 is in the right of y. First of all I need to move into the right of y. मुझे कहां जाना है? राइट में जाना है y के. ओके देन T3 is in the left of z. तो मुझे कहां जाना है? लेफ्ट ऑफ z जाना है. ये समझ में आ गया आपको. अब चाहे आपको नंबर हो या अल्फाबेट्स हो कुछ भी हो आपको लॉजिक पता होना चाहिए. इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? थोड़ा क्लियर हुआ. So yes or no, please. Yes sir. Yes sir. Yes sir. From everyone actually. Clear Yes, हुआ sir. तो बोले, नहीं हुआ तो मत बोले. मतलब नो बोले कम से कम. Now 60 के लेफ्ट में क्या होगा बताइए? 65. 60 कुछ के भी नहीं लेफ्ट होगा, में sir. क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. 60 के राइट में क्या होगा? 65. 65. वेरी गुड. सो अब देखो ये ट्री बन गया मेरा छोटा सा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. हाँ तो अब बताइए बैलेंस फैक्टर इज इट एन एविल ट्री? Yes sir. सो बैलेंस फैक्टर ऑफ जी. 65 इज 0. balance factor of 65 is 0. Balance factor of 60 is -1. very good. 55, 0. 0. 45, 0. 0. 0. 25, 0. 50. 0. 0. Now I need to insert new element, and that new element is 75. okay. So 75 यहाँ लिख देते हैं हम. 75 insert करने वाले हैं हम लोग. Now the tree will be. Tell me. Root will be 75 65 के राइट पार्ट में सेट हो जाएगा. ट्री एज इट इज रहेगा. ट्री में कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं और 65 के राइट में जाएगा ये. 75 सेट हो जाएगा. थोड़ा सा हमें इसको स्पेस देना पड़ेगा ताकि बन सके. क्या इसके बाद जो ट्री बन रहा है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? Unbalanced. अनबैलेंस्ड है. तो ये देख करके मैंने अपना डायग्राम को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ. 55 ओके, 45, 60, 65 and 75 will be onto the right of 65. 65. The rest is same. It is 50, अब दोबारा आर रोटेशन 20. करना पड़ेगा. एक रोटेशन समझ में आना चाहिए. आप सब रोटेशन अपने आप कर लेंगे, ये मुझे पता है. 75 का बैलेंस फैक्टर इज 0. 0. -1. -1. -2. -2. -2. 55. -1. -1. अब ये भी एक एग्जांपल है. आप देखो यदि कोई नोड क्रिटिकल बनी है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर की नोड्स भी क्रिटिकल बने. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. फॉर 45 इट इज 0, फॉर 25 इट इज 0, फॉर 50 इट इज 0. 0. और द क्रिटिकल नोड इज 60. 60. 60 क्रिटिकल नोड हो गई. अब मुझे क्या परफॉर्म करना है? टेल मी व्हिच रोटेशन. RR RR rotation. सारा रोटेशन लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट होगा. है ना? कहां पर परफॉर्म होगा वो? इन विच एज, ऑन विच एज वी विल परफॉर्म? 60 and 65 60. के बीच में. 60. आरआर मींस लेफ्ट रोटेशन. सो हम लेफ्ट रोटेट करेंगे. अब ट्री जो बनेगा वो क्या बनेगा? 65 रूट नोड बन जाएगा. 65 रूट रूट नोड बनेगा क्या? रूट नोड क्या होगा बताइए? 65. 65 ही रूट होगा. नोड क्या होगा ट्री का? 55. 55. रूट नोड को थोड़ी चेंज कर रहे हो अभी आप. रोटेशन Sir, का we are परफॉर्म saying हो रहा for है. right Rotation subtree. का परफॉर्म- Right subtree हो. Root of हाँ, right subtree. बिल्कुल. तो 55 का राइट चाइल्ड क्या बनेगा?
65 65 65 65 का लेफ्ट अब 60 राइट में आ 60 जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा 60 और 75 इसके राइट में। राइट में। रेस्ट वी विल रिमेन्स एज इट इज, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, उसको हमने कोई चेंज ही नहीं किया। नाउ बैलेंस वेक्टर ऑफ दीज एवरी नोड विल बी कैलकुलेटेड। 0 एवरी नोड फॉर बैलेंस वेक्टर इज 0। समझ में आ गया आपको? सर एक बार लास्ट Yes, स्टेप sir. रिपीट कर दीजिए। ओके, लास्ट स्टेप में बच्चे विच ट्री इज बिकमिंग अनबैलेंस्ड, विच नोड इज बिकमिंग क्रिटिकल नोड, टेल मी। 60 60 is my critical node. Okay, that 60 is my critical node. Okay, now rotation needs to perform on which edge? between 60 and 65. Definitely. So just look at that subtree 60, 65 and 75. Okay, in this subtree I need to perform the rotation. So which will become the root node of this subtree? 65. 65. And definitely 65 will become the right child of 55. So rotation is being performed in this subtree only now. Yes or no? Sir, but Is it? सर हाँ, बट पूछो। अगर हम मतलब इस एज को रोटेट करते तो ये पूरी एज रोटेट नहीं होगी 55 के साथ ही? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं पर भी देखिए ऐसा हुआ क्या बच्चा? अच्छा ऊपर देखिए, जैसे ऊपर वाले देखिए 45 यहाँ पर हमारा रूट नोड बना हुआ है, इसमें हमने 50, 50 और 60 वाले सब ट्री को रोटेट बनाया, रोटेट किया, तो रोटेट क्या हुआ? 60 हुआ है। इधर देखिए ना, यहाँ पर जो आएगा 45 और 20 होता है, 50 रोटेट हुआ। सेम सेम सीन तो यहाँ पर भी हुआ। रोटेट हुआ है। सर इस वाले स्टेप में भी कंफ्यूजन है मुझे। क्या कंफ्यूजन बताइए बेटा? दिस सब ट्री ओनली विल बी द ट्री ऑन विच वी आर परफॉर्मिंग द रोटेशन, दैट सब ट्री। तो इस सब ट्री को, ये इसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो इसको रोटेट करने पर जो नया सब ट्री बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? ये बनेगा ना बेटा? यस और नो? यस सर। बट सर जैसे अगर हम 50 और 55 के बीच में रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो 50 विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 55, तो वो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा ना। 45 और 55 के बीच में बॉन्ड कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं फिर? हाँ नहीं कर रहे ना, जो नया जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो 45 और 55 के बीच में जाएगा ना। तो ये बॉन्ड हम क्रिएट कर रहे हैं या प्रीवियस बॉन्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, हम नया बॉन्ड हम एक्चुअली चेंज करेंगे। 45 के राइट में जो पॉइंटर होगा वो चेंज होगा इसमें। 45 के जो 55 को पॉइंट करेगा डेफिनेटली। तो मतलब क्योंकि सर हमें जो भी रोटेशन में चेंजेस, क्या होगा, सुनो मेरी बात, रोटेशन में क्या होगा, 55 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? 50। यस सर। है ना? तो 55 के लेफ्ट में 50 आ गया, तो अब 45 के लेफ्ट में 50 तो हो नहीं सकता, सॉरी राइट में 50 तो हो नहीं सकता। सर राइट में ही तो है 45 के। हाँ 45 के राइट में, मतलब उसका राइट चाइल्ड नहीं हो सकता, उसके राइट सब ट्री में है वो, लेकिन राइट चाइल्ड नहीं हो सकता। नहीं, तो उसका राइट, क्योंकि हमने रोटेशन परफॉर्म की है। रोटेशन परफॉर्म किया है। रोटेशन पे ये पूरा ट्री, ये ट्री डिस्टर्ब होगा, रोटेट होगा एक्चुअली। तो सर हम रोटेशन एक पर्टिकुलर पार्ट पे परफॉर्म करें, हम पूरे ट्री को नहीं लेके चलेंगे रोटेशन में। बिल्कुल नहीं करेंगे। जहां पर भी जो, तभी तो मैंने आपको बोला, लाइक यहाँ पर इन दिस एग्जांपल 2 नोड्स बिकमिंग क्रिटिकल नोड 45 एंड 50। सो यदि मैं 40 और 50 वाली नोड पर या एज पर रोटेशन करता तो 50 रूट नोड बनता। यस सर। है ना? तभी हमने बोला कि रोटेशन सबसे नीचे वाले ट्री पर ही होगा, रोटेशन जो सबसे पहली क्रिटिकल नोड आ रही है उस पर रोटेशन होगा। वेरी गुड। ऐसे तो डाउट्स सर हैं? पूछो पूछो। वेरी गुड। तो सर जहां हमें रोटेट करना है तो हम पहले उस सब ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी सारी पोजीशंस फिर उसके ऊपर डाल देंगे। डेफिनेटली। अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, यू हैव टू डू। अब ये स्लाइड में शेयर करूंगा, इसमें 2 एग्जांपल हैं। एक तो ये है जो अल्फाबेटिकल वाला है, और इसके बाद एक और है जो अल्फाबेटिक वाला है, और एक और मैं इसमें डाल दूंगा न्यूमेरिकल वाला। आप सब ट्राई करेंगे इसको अपने आप से, क्योंकि एक ही यस सर, जरूर ट्राई करेंगे। आप लोग खुद नहीं करोगे जब तक आपको प्रॉब्लम ये डेफिनेटली नहीं होगा एग्जाम में जाकर के। यू हैव टू डू इट।
मैं असाइनमेंट ही डाल दूंगा इसका एक, ठीक है, जिसमें सारे रोटेशन परफॉर्म होने होंगे। मैं वो ऐसा एग्जांपल ढूंढूंगा और वो आपको दूंगा मैं करने की, जिसमें कि एल एल, आर आर, एल आर और आर आर, आर एल सारे रोटेशन परफॉर्म होंगे। ओके, एनी डाउट नाउ? सर इसको बने रहने देना, क्योंकि इसमें सही कई सारे केसेस आ गए। So is it okay? Is it clear to all? Any other doubt? I appreciate if you ask some doubts. तभी मुझे लगता है कि पढ़ाया गया है। सर एक बात पूछूं सर? हाँ बोलो। सर 60 क्रिटिकल नोड है। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो 60 रोटेट वो 65 ही रोटेट होगा, क्योंकि क्रिटिकल नोड से एक नीचे का नोड पे रोटेशन। अब देखिए जो लास्ट ट्री ओपन हुआ है वो परफेक्टली बैलेंस ट्री है, लेकिन यदि आप इसी डाटा से यदि बाइनरी सर्च ट्री बनाते तो कितने लेवल तक जाना था ट्री? जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट ट्री? 6। वेरी गुड, 6 लेवल क्रिएट होते यदि हम इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाते तो। नाउ टेल मी, यदि एवीएल ट्री जो हमने बनाया है अभी उसके कितने लेवल हैं? 2। 2 लेवल, 0 1 2, 0 1 और 2, वहां पर 0 1 2 3 4 5 6 6 तक जा रहा था। So now how we have reduced the size of the tree, sorry, height of the tree. Is it okay to you all? ओके सर। Definitely, like जब आप इंसर्शन करोगे तो आपको इसमें कितनी नोट देखनी पड़ेंगी? एवीएल ट्री में कितनी नोट्स को देखना पड़ेगा आपको बताइए? यदि 85 आपको इंसर्ट करना है तो आप कितनी नोट को देखोगे? 55, 65 and 75. Only 3 nodes you will compare. Yes or no? यस। यदि आप उसका बाइनरी सर्च ट्री ऑब्जर्व करें, अज्यूम करें अपने माइंड में, तो आप कितनी नोट चेक करोगे उस केस में? 25, 45, 50, 55, 60, 61, 75। तो आप 7 कंपैरिजन करोगे। 7 कंपैरिजन कर रहे हो, तो डेफिनेटली विच वन इज बेटर? एवीएल ट्री। क्यों बेटर है? देखो ये रीजन भी क्लियर होना चाहिए व्हाई इट इज बेटर नाउ। सर इसकी क्योंकि जो सबसे पहली मेरी स्लाइड थी वो अब यहाँ पर आई थिंक कंक्लूड हो सकती है। यस और नो? टेल मी यस और नो। I am not audible? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So we are trying to reduce the height always, and like other trees are also there. One more tree we will study, that is B tree, B plus tree. इसमें और भी height reduce हो जाएगी. Okay, so that is how we can actually reduces the overall complexity of any of the operations on the trees. So this is what the insertion of the AVL tree. मैंने तो आज deletion भी बना लिया था, deletion भी पढ़ा दूंगा। हम कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं। I think I need to take some extra classes. तो डिलीशन इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी केवल रोटेशंस ही हैं, ओवरऑल द रोटेशंस दैट वी आर परफॉर्मिंग, same rotation here we will do, but based on some conditions we have to find out that which rotations I need to perform. So that we need to learn, and then we will also see the example of this deletions. Okay, so tomorrow definitely I will try to complete this AVL tree. It takes 3 lectures. यदि हम ऑफलाइन मोड में तो ये 2 लेक्चर में कोशिश करता मैं करने की। नो वे एट ऑल, समझ में आना जरूरी है। जो पढ़ा है उतना समझ में आना चाहिए। सारा पढ़ लेना समझ में कुछ भी नहीं आया वो भी अच्छा नहीं है। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड नाउ? आई विल शेयर दिस पीपीटी अगेन टुडे within 1 or 2 hours. Okay, and then you just go through it. You just try it another examples on your own. अपनी कॉपी एंड पेन पे इसको करें, एज एन असाइनमेंट आप सबमिट भी करें इसको। मैं असाइनमेंट डाल दूंगा इसका। सर एक केस ढूंढूंगा जिसमें लेफ्ट राइट रोटेशन दोनों परफॉर्म। आई विल गिव यू द एग्जांपल। मैं असाइनमेंट जो देने वाला हूँ वो वैसे ही होगा, उसमें चारों चीजें होंगी। इस एग्जांपल में भी चारों चीजें हैं। एच आई नहीं सर, लेफ्ट राइट चौथी जो एग्जांपल है ना, तीसरा एच था। आई जे बी ए ई सी एफ डी जी के एल, इसमें चारों परफॉर्म होने वाले हैं। चारों टाइप ऑफ रोटेशंस वी विल परफॉर्म इन दैट। चलो
Anything you want to ask now? I am taking attendance. No, sir. Okay, the strength is less, I guess. 39 students are only there. Because of, I think last lecture it is less. So this is the attendance. 38 students are there. So that's all for today from my side. We have learned about the insertion of AVL tree. We have seen the different rotations of the AVL tree. 4 rotations we have seen. I have taken one example, so complete example also, in which we have seen how the various conditions could be there. And I will also assign you some examples to do on your own as an assignment. So that is all. If you want to ask anything, you can ask. And otherwise, you can leave the class.